Hello friends, good morning, good noon and good evening to each and all. I heartily welcome each and every student into the world of literature, into the world of R.K. Narayan. Dear friends, in the last lecture or video, we have discussed the third short story from R.K. Narayan's Malgudi days. I hope you might have enjoyed that story. So here in this video, we are going to discuss the next story from the same book, that is Father's Help. Dear friends, from the title itself, you will be able to judge the theme of the story. You may understand that, rather you may imagine that the story talks about whom? The story talks about father, and especially in the title you will find there are two words, Father's Help. So, it is the story which is written in order to make the readers happy, in order to make the reader we can say that to make the reader please. In my former video, as I told you that the basic and the ultimate goal of literature is to teach or preach, and the another objective of literature is to please. So this story doesn't convey any message, but it is written only for the fun. So the entire story is full of humor. At the end of the story, you will really enjoy this story like anything. So this story doesn't carry any message. So मैंने आपको पहले भी बताया कि लिटरेचर जो है वो कभी कभी आर्ट फॉर आर्ट से लिखा जाता है और कभी कभी आर्ट फॉर लाइफ सेव भी लिखा जाता है. तो दिस स्टोरी इज रिटन ओनली एंड ओनली फॉर द आर्ट फॉर आर्ट सेक. आर्ट फॉर आर्ट सेक क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ओनली एंड ओनली फॉर फन लिखा जाता है, सिर्फ रीडर को अम्यूज करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए लिखा जाता है. एंड ये जो पूरी कहानी है, द एंटायर स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर, इट विल मेक यू लाफ. सी लेकिन इट इज नॉट कॉमेडी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ह्यूमर. बाय द वे, इट इज अ topic of literature, and being a student of BB, I suppose there is no need to go in deep to discuss about what is the difference between comedy and humor, but I will just give you simple example. Comedy means what? Comedy means which make you laugh. मतलब आपको इतना हंसा सकता है कि आप हंसते से कभी कभी चेयर पर से भी नीचे गिर जाओ. इतना हंसाने वाली जो कंटेंट होती है वो कॉमेडी होती है. और ह्यूमर का मतलब क्या होता है? ह्यूमर जो होती है वो इतनी कि आपको हंसी नहीं आती, बट yes, you will really enjoy the literature, you will really enjoy the scene. जब आप पढ़ोगे तब आपके चेहरे पे जो छोटी सी मुस्कान आती है, that smile, that please is known as humor. तो ये कहानी आप खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे तब उसके अंदर आपको जो ह्यूमर मिलता है. सो दिस इज व्हाट ह्यूमर इज. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमेडी एंड ह्यूमर. पूरी कॉमेडी हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये ह्यूमरस story है. If you look at the numbers of characters, as I told you that in short story we have very limited characters. So here in this story we have only three main characters, leading characters. By the way, only the leading character is Swaminathan, or we can say Swami. So the leading character is Swami or Swaminathan. Another character is Swami's father. By the way, his name is not mentioned here. And the third one is Samuel. Samuel is a teacher, is a Christian teacher, and as I told you that most of the story of Malgudi days set in Malgudi, a fictitious town, an imaginary town, and most of the stories of R.K. Narayan set in the background of 1947 or before 1947. So ये जो कहानी है वो भी बिफोर 1947 की है. ब्रिटिश इंडिया जब था, बिफोर इंडिपेंडेंस, उस वक्त की ये कहानी है. सो अगेन इन दिस स्टोरी यू विल फाइंड द कॉमन नेम. अल्बर्ट मिशन स्कूल का नाम है, स्वामी का नाम है, और उस वक्त की जो ब्रिटिश इंडिया जैसा था, उस वक्त जैसे स्कूलिंग चल रही थी वो बात है. एंड यस, ऑफ कोर्स द एंटायर स्टोरी इज फुल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी. तो आर.के. नारायण ने चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश की है, और उन्होंने अपने नॉवेल्स के अंदर, अपने शॉर्ट स्टोरीज के अंदर उस साइकोलॉजी को उन्होंने प्रेजेंट किया है. तो आइए देखते हैं कि व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. स्टोरी के अंदर क्या हो रहा है.
See what happens when the story opens. At that time, a leading character appears on the screen, appears on the page of a short story, Swaminathan. He is a very little schoolboy who doesn't want to go school on Monday. See, again it is psychology. Most probably we don't like Mondays. You know, when we were in school days. हम जब स्कूल डेज के अंदर थे उस वक्त हमें मंडे अच्छा नहीं लगता था. वाई मंडे वॉज नॉट फाइन? बिकॉज बिफोर मंडे देर वॉज संडे. क्योंकि मंडे के पहले संडे आता था और वी एंजॉयड संडे लाइक एनीथिंग. और सैटरडे के अंदर सैटरडे में हमारी जो स्कूल होती थी वो मॉर्निंग की होती थी और या तो फिर हम जल्दी छूट जाते थे. तो सैटरडे वॉज वेरी हैप्पी डे फॉर अस. सैटरडे स्कूल के अंदर बहुत अच्छा लगता था क्योंकि तुरंत हम वापस आ जाते थे. बाद में संडे की छुट्टी और फिर मंडे जब आता था सुबह होकर के स्कूल जाना, ये वो, मतलब कि मंडे किसी को, मतलब कि ज़्यादातर बच्चों को अच्छा नहीं लगता है. तो सेम थिंग हैपन्स हियर. मंडे का दिन था. स्वामीनाथन स्कूल जाने के लिए हिचकाता था, उसको पसंद नहीं था स्कूल जाना. सोचता है कि आज क्या किया जाए कि मैं स्कूल ना जाऊं. बहाने ढूंढता है. फिर छोटे बच्चों का अगेन इट इज साइकोलॉजी. छोटे बच्चों की एक ही बीमारी होती है, या तो पेट दुखता है या तो सिर दर्द करता है. तो स्वामी ने सोचा कि क्या किया जाए. उसने बताया कि ठीक है चलो बहाना बना लेता है. बोलता है कि सिर दर्द हो रहा है. अपनी माँ उसको उठाने जब आती है बोलती है कि डोंट यू वांट टू गो टू स्कूल नाउ. स्वामीनाथन सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम हेडेक, आई डोंट वांट टू गो स्कूल टुडे. तो ठीक है, मम्मी को तो कैसे भी करके मना लिया. लेकिन व्हेन हिज फादर comes to know that Swami still has not get up and get ready for the school, पापा जो थे वो अगेन टिपिकल इंडियन फादर की बात आर के नारायण करते. क्योंकि आर के नारायण के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं बहुत ही टिपिकल होते हैं. फादर जो थे वो बहुत जिद्दी थे, बहुत स्टबन थे. और वैसे भी छोटे बच्चों का कुछ चलता नहीं है फादर के सामने. तो फादर ने बोला कि दैट इज़ योर प्रॉब्लम. संडे को पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमता रहता है और मंडे को ही तेरे को सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है. चल कुछ भी और फटाफट गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं तुझे स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ. अब बताए कि अब पापा को कैसे समझाया जाए. समझता था कि पापा किसी भी तरह झांसे में आने वाले हैं नहीं. फिर और भी कुछ बहाने निकालते रहता है. क्या क्या बहाने निकलता है विल डिस्कस इन द स्टोरी. लेकिन बहाना निकलता है, पापा ने बताया कुछ भी हो तुझे स्कूल जाना ही जाना है. और वो टीचर की फिर कंप्लेन करता है कि टीचर बहुत मारते पीटते हैं. तो उसके पापा ने एक कंप्लेन लेटर हेडमास्टर को लिख दिया और उसको बोला कि ये तू कंप्लेन लेटर तेरे हेडमास्टर को दे देना. हेडमास्टर विल लुक इनटू दिस मैटर एंड डू द नीडफुल. मतलब कि उसको स्कूल जाना ही जाना था. अब कोई उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था, कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी उसके पापा ने. अब वो स्कूल जाता है लेकिन इन बिटवीन द वे सोचता है कि क्या किया जाए. ही वॉज इन डायलेमा. ही वॉज इन द माइंड ऑफ स्टेट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. वो हेमलेट की तरह हो गया, शेक्सपियर के हेमलेट की तरह. क्या किया जाए क्या ना किया जाए. अल्टीमेटली ही रिस्क्ड एट द स्कूल में पहुंचता है. क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है. वही टीचर, उसके क्लास टीचर का क्लास चल रहा होता है. और बाद में फिर टीचर के साथ जो कम्युनिकेशन होता है और वो जो पूरी एक एपिसोड है, वो जो पूरा एक इंसिडेंट है, वो बहुत ही ह्यूमरस है. उसके लिए हम ओरिजिनल कहानी देखते हैं. तो आइए मैं ले चलता हूँ आपको ओरिजिनल कहानी की ओर. The title of the story is Father's Help. Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. Here there is a word shudder. Shudder का मतलब होता है trembling. Lying in bed, अभी मतलब देखो, you can see in the opening line, R.K. Narayan launches his leading character, launches his dominant and prominent character. उसका जो main character उसको ही launch कर देते हैं. Lying in bed, अभी तो स्वामी उठा भी नहीं है और बेड मतलब कि पथारी के अंदर पड़ा हुआ है. और जैसे ही आंखें खोलता है, स्वामी realized with a shudder that it was Monday morning. सुबह हो गई मामू. अब वो सोचता है कि मंडे आ गया, स्कूल जाना पड़ेगा. अगेन फर्स्ट लाइन में ही आर के नारायण ने चाइल्ड साइकोलॉजी बता दी है. इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट हैड बीन द लास्ट पीरियड ऑन फ्राइडे, ऑलरेडी मंडे वॉज हियर. See, again it is child psychology. Swaminathan, he thinks that before a few moment ago it was Friday, Saturday has gone, Sunday has gone and Monday has arrived. बोलता है कि अभी तो सैटरडे फ्राइडे का लास्ट लेक्चर था, सैटरडे भी चला गया, संडे तो कहाँ चला गया पता ही नहीं चला और आज मंडे आ गया. आई हैव टू गो टू स्कूल.
मतलब उसको मंडे, ही डजंट लाइक मंडे. He hoped that an earthquake would reduce the school building to dust, but that good building, Albert Mission School, had withstood similar prayers for over 100 years now. At 9 o'clock, Swaminathan wailed, "I have headache." His mother said, "Why don't you go to school in a jutka?" See again how R.K. Narayan is typical South Indian writer. How R.K. Narayan has dived deep into the mind of character, especially the characters of children. जो बच्चों का माइंड है, उसका हार्ट, उसके अंदर आर के नारायण ने इतना गहराई से स्टडी किया हुआ है. उसकी जो साइकोलॉजी उसने बहुत ही भली भांति उन्होंने अपने सामने उसकी कलम से हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत की हुई है. तो वो सोचता है कि क्या किया जाए. वो सोचता है कि अगर अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, तो बिल्डिंग गिर जाए, तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े. नो, these were the common thoughts that we had when we were in schools. But here Swaminathan thinks that शायद अर्थक्वेक आ जाए, पूरी बिल्डिंग गिर जाए, तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़े. लेकिन दूसरी बार सोचता है कि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है इतना ज़बरदस्त है कि वो कभी गिर ही नहीं सकती है, और वहाँ पे तो इतनी सारी प्रेयर्स हुई है तो वो और भी मजबूत हो गई. अगेन यू कैन सी द कॉमन नेम ऑफ द स्कूल, अल्बर्ट मिशन स्कूल. सो इन द प्रीवियस स्टोरी in Iswaran there was Albert Mission College. Now here you can see the same name, Albert Mission School. Why it is Albert Mission? Because R.K. Narayan had his schooling from Albert Mission School. So in most of his short stories and novels, R.K. Narayan repeatedly uses Albert Mission School. So सुबह के 9 बज गए. At 9 o'clock Swaminathan wailed, मतलब क्राई करता है. सो बोलता है कि मम्मी आई हैव अ हेडेक, सिर दर्द है. सी अगेन इट इज टिपिकल इंडियन मदर. इस मदर सेड, माता जो होती है वो जल्दी से पिघल जाती है. मम्मी पूछती है उसको, व्हाई डोंट यू गो टू स्कूल इन अ जुटका. सी जुटका का मतलब होता है बिफोर 1947, और आज से 50-60 साल पहले देयर वाज नो साइकिल, देयर वाज नो एक्टिवा, मोपेड्स एंड ऑल. मतलब कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था बच्चों के पास. तो झुटका का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी. तो बोलता है तुझे घोड़ा गाड़ी में बैठ के स्कूल नहीं जाना है. अब देखो स्वामीनाथन क्या क्या बहाने बनाता है. सो दैट आई मे बी कंप्लीटली डेड एट द अदर एंड. हैव यू एनी आइडिया व्हाट इट मीन्स टू बी जॉल्टेड इन झटका. अरे क्या मम्मी तू मुझे मार देना चाहती है कि अगर मैं झटका के अंदर बैठ के, मतलब कि टांगे के अंदर बैठ के अगर मैं स्कूल गया तो मेरी लाश ही वापिस आएगी. यू कैन सी हाउ एग्जाजरेटेड स्वामीनाथन इज. स्वामीनाथन कितना एग्जाजरेट करता है, मतलब कि कितना. सी इट हैपन्स मोस्ट प्रोबेबली. बोलता है कि अगर मैं गया स्कूल तो मैं वापिस आऊँगा कि नहीं, एक क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा. हैव यू मैनी इंपॉर्टेंट लेसन्स टुडे. अगेन कॉमन क्वेश्चन जनरली आस्क्ड बाय, रिपीटेडली आस्क्ड बाय टिपिकल इंडियन मदर टू देयर चिल्ड्रन. बोलता है कि अच्छा ठीक है, बता आज कोई स्कूल में कोई इंपॉर्टेंट लेसन तो नहीं है. सी दिस इज द कॉमन क्वेश्चन बाय पेरेंट्स एंड द कॉमन क्वेश्चन बाय ऑल द स्कूल चिल्ड्रन. और बच्चे उसका एक ही को आंसर देते हैं. देखना, इंपॉर्टेंट. दैट जियोग्राफी टीचर हैज बीन टीचिंग द सेम लेसन फॉर ओवर अ ईयर नाउ. सी अरे क्या इंपॉर्टेंट लेसन की बात कर रहे हो मम्मी. हमारे जो जियोग्राफी के जो टीचर है, भूगोल के टीचर है, वो तो 1 साल से एक ही लेसन पढ़ा रहे हैं. अभी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1 साल से एक लेसन तो हो ही नहीं सकता कभी. लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही बोलते हैं. जब स्कूल नहीं जाना होता है तब वो टीचर का कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, या तो अपना कुछ बहाना बना देते हैं, बीमारी का बहाना बना देते हैं, कुछ पढ़ाते नहीं है, कुछ कराते नहीं है. दिस आर दी कॉमन एक्सक्यूजेज. ये सारी कॉमन एक्सक्यूजेज हमारे स्कूल के अंदर होती है. एंड वी हैव अरिथमेटिक. अगर हम अरिथमेटिक बीज गणित की बात करें, विच मीन्स फॉर अ होल पीरियड वी आर गोइंग टू बी बीटन बाय द टीचर एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट लेसन्स. और अगर एरिथमेटिक की बात की जाए तो हमारे मैथ्स के टीचर तो पूरा लेक्चर जो है बच्चों को मारते पीटते हैं, क्योंकि वो कुछ पूछते हैं, हमको कुछ आता नहीं, और टीचर जो है बेवजह हमें मारते ही रहते हैं. और तू बोल रही कोई इंपॉर्टेंट लेसन्स है. देयर इज़ नो नीड टू गो टू स्कूल. अब आज के दिन स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसा करके कैसे भी करके अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा है. एंड मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम. ठीक है बेटा, तो तू आज रेस्ट कर. माँ तो मान गई. अब देखते हैं क्या होता है. एट 9:30 हार्डली
after 30 minutes, when he ought to have been shouting in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. Father asked him, have you no school today? 9:30 हो गए थे, लगा कि अब चलो स्कूल जाना नहीं है, तो मतलब कि वो उठ गया और डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था, चाय नाश्ता कुछ कर रहा था। पिताजी ने देखा कि स्कूल के लिए रेडी नहीं हुआ है ये, तो अभी यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है। फादर ने बहुत टिपिकल टोन के अंदर बताया, हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या स्कूल बोल नहीं जाना है तुझे? स्वामी नोज वेरी वेल हिज फादर। स्वामी ने मुरझाते हुए कहा, हेडेक। स्वामी रिप्लाइड। फादर अगेन टिपिकल फादर है, नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। नालायक, तैयार हो और चल स्कूल। स्वामी और कुछ नहीं बोल पाता है, सिर्फ एक ही बात रिपीटेडली बोलता है, हेडेक। पिताजी मुझे सरदर्द हो रहा है। अब उसके पिता देखो क्या बोल रहे हैं, लॉफ अबाउट लेस ऑन संडेज एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। यहाँ पे वर्ड है लॉफ। लॉफ का मतलब होता है, ऐसे तो लॉफ का मतलब वंडरिंग करना, यहाँ वहाँ घूमना भटकना होता है, लेकिन यहाँ पे लेजी वर्ड एग्जैक्टली उसकी मीनिंग होती है लेजी, आलस। संडे को तू यहाँ वहाँ घूमता रहता है पूरा दिन, तब तुझे कोई सरदर्द नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, लेकिन जब मंडे आता है उसी वक्त तुझे हेडेक होने लगता है। स्वामी न्यू हाउ स्टबर्न, स्टबर्न मतलब जिद्दी, हिज फादर कुड बी एंड चेंज हिज टैक्टिक्स। उसको लगा कि ये हेडेक वाली बीमारी नहीं चलेगी, कुछ और करना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत ही, स्वामी ने तुरंत ही दूसरे टेक यूज की। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। पापा अब मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि अब बहुत लेट हो गया। उसके फादर देखो क्या बोल रहे हैं, आई अग्री बट यू विल हैव टू, इट इज योर ओन फॉल्ट, यू शुड हैव आस्क्ड मी बिफोर डिसाइडिंग टू स्टे होम और स्टे अवे। सी अगेन इट इज अ कैरेक्टर ऑफ डोमिनेंट patriarchal society. Most of the decisions are taken by the male of the family. मतलब कि फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं और ज़्यादातर जो फादर होते हैं वही ये सारे डिसीजन लेते हैं। हालांकि ऑलरेडी मदर ने बता दिया कि चलेगा तो स्कूल नहीं जाएगा, मम्मी को तो उन्होंने पटा लिया, लेकिन फादर को पटाना इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर स्वामी। स्वामी दूसरी भी टैक्ट यूज़ करता है कि अब इतनी लेट हो गया, आई कांट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सकता, वहाँ पर टीचर मुझे डांटेंगे, मारेंगे। पिताजी बोलते हैं, हाँ बात तो सही है तेरी, लेकिन ये तेरा फॉल्ट है, तूने मुझे पूछा है मैं स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ, चल दिस इज़ योर फॉल्ट, रेडी हो जा, चलो स्कूल चलते हैं। फिर वो आगे बोलता है, व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट। अरे पापा मैं इतना लेट गया तो टीचर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो फादर उसको बोलता है, टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। बोल देना, जब घर पे तू बोल सकता है कि तुझे हेडेक है तो वहाँ भी बोल देना। लेकिन स्वामी बोलता है, ही विल बीट मी इफ आई से सो। सी कितने कितने बहाने निकलता है। अरे पापा मैंने टीचर को बोला तो टीचर तो मुझे मार ही देंगे। विल ही, क्या बात करता है, वो मारता है छोटे बच्चों को। लेट अस सी व्हाट इज हिज नेम, कौन सा टीचर है, कौन मार रहा है? उसके माइंड में जो मतलब नाम आया, उसके स्कूल टीचर का, क्लास टीचर का नाम आया, बोला सैमुअल। सी यू कैन सी द नेम इज नॉन इंडियन, सैमुअल। सैमुअल इज अ क्रिश्चियन नेम, तो इट इंडिकेट्स बिफोर 1947 सिनारियो। बोले हाँ हमारे टीचर है, क्लास टीचर जिसका नाम है सैमुअल, वो बच्चों को मारता पीटता है। फादर अगेन आस्क, डज ही बीट द बॉयज, क्या छोटे बच्चों को भी मारता है? अब देखो स्वामी उसकी पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बना के बोलता है, ही इज वेरी वायोलेंट स्पेशली विद द बॉयज हु कम लेट। अरे बच्चों को तो बहुत ही मारता है, बहुत ही वायोलेंट है, और स्पेशली जो बच्चे लेट आते हैं उनको तो बहुत ही पीटता है। Some days ago, a boy was made to stay on his knees for a whole period in a corner of the class because he came late, and that after getting 6 curds from his can and having his ears twist. I wouldn't like to go late to Samuel's class. अरे पापा अभी की बात है, एक बच्चा आया, थोड़ा सा क्लास में लेट के आया, पूरा पीरियड उसको नीज पे मतलब कि अंगूठे पकड़वाए और कॉर्नर के अंदर खड़ा रखा, और बाद में जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हुआ, गेटिंग 6 कट्स फ्रॉम द कैन, कैन का मतलब रोड, मतलब कि उसको स्टिक से मारा और उसके कान को भी ट्विस्ट किया और इतना मारा कि उसको खून निकल आया। आई वुडंट, मैं अभी स्कूल जाना नहीं चाहता क्योंकि सैमुअल हमारे क्लास टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मतलब ये बहाने निकालता है। अब देखो उसका ट्रिक का क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ सच काइंड ऑफ
एक्सक्यूजेज, ये जो सारे एक्सक्यूजेज निकालता है उसका आउटकम क्या आता है? इफ ही इज सो वायोलेंट व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट? अगर अच्छा तेरा टीचर इतना वायोलेंट है तो हेडमास्टर को कंप्लेन क्यों नहीं करते? अब स्वामी का आंसर देखो, दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, ही इज सच अ वायोलेंट मैन। अरे वो तो इतना वायोलेंट है कि हेडमास्टर भी उससे डरता है। स्वामी कैसे भी कुछ भी, मतलब कि वट एवर कम्स इन हिज माइंड, कुछ भी आता है बकता जा रहा है, लेकिन अल्टीमेट उसकी गोल यही है कि ही डजंट वांट टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल नहीं जाना, इसलिए सारे बहाने बना रहा है। एंड सी अगेन इट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। आप अपने बचपन को याद करो, स्कूल को याद करो। मोस्ट प्रोबेबली व्हेन वी डिडंट वांट टू गो टू स्कूल वी ऑल्सो हैड मेड सच काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज एंड इट हैपन्स। एंड देन स्वामी गेव अ ल्यूरिड अकाउंट ऑफ द सैमुअल्स वायोलेंस, मतलब कि लंबा चौड़ा सैमुअल के बारे में वायोलेंस का पूरा एपिसोड बना दिया। How when he started caning, he would not stop till he saw blood on the boy's hand, which he made the boy press on his forehead like a vermilion mark. अरे बोलता है कि पापा आपको मालूम नहीं है कि टीचर एक बार मारने की शुरुआत करता है वो तब तक नहीं रुकता है जब तक बच्चे के हाथ में खून ना निकल जाए, और वो जो खून निकलता है उसको फोरहेड यानी कि ललाट पे, मस्तक पे, लाइक अ वर्मिलियन मार्क। सी अगेन इट इज़ अ टिपिकल साउथ इंडियन। वर्मिलियन का मतलब होता है जो तिलक होता है, त्रिपुंड जिसको संस्कृत में कहा जाता है। इफ़ यू माइट हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं उसके ललाट पे, उसके कपाल पे जो तिलक लगाते हैं 3 लाइन वाला, तो दैट इज़ नॉन एज वर्मिलियन मार्किंग, मतलब कि वो जो खून निकलता है उसका वो त्रिपुंड लगाता है। स्वामी होप्ड दैट विद दिस हिज फादर वुड बी मेड टू सी दैट ही कुडंट गो टू हिज क्लास लेट। उसको लगा कि चलो अभी इतना बोल दिया शायद पापा पिघल जाएंगे, मेरी बात मान लेंगे। बट फादर्स बिहेवियर टूक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। ही बिकेम एक्साइटेड। व्हाट डू दिस स्वाइन मीन बाय बीटिंग आवर चिल्ड्रन? दे मस्ट बी ड्राइवन आउट ऑफ सर्विस, आई विल सी। बोला कि अच्छा इतना मारपीट करता है, ठीक है चलो मैं आज तेरे टीचर को देख लेता हूँ। स्वामी ने कभी वो ख्यालों में नहीं सोचा होगा कि ये उसकी जो ट्रिक है उसका आउटकम ऐसा आएगा। The result was he proposed to send Swami late to his class as a kind of challenge. बोला आज तो तू जानबूझ के लेट जा, मैं देखता हूँ कि तेरा टीचर करेंगे क्या कर लेता है। He was also going to send a letter with Swami to headmaster. No amount of protest from Swami was of any avail. Swami had to go to school. स्वामी की एक ना चली, स्वामी को स्कूल पे जाना ही जाना था। और उसके पिताजी ने बोला ठीक है चलो मैं एक आपको कंप्लेन लेटर लिख के देता हूँ, वो तेरे हेड मास्टर को दे देना, ही विल लुक इनटू दिस मैटर एंड डू हिज नीडफुल। बाय द टाइम ही वाज रेडी, फादर हैड कंपोज्ड अ लॉन्ग लेटर टू द हेड मास्टर, पुट इट इन एन एनवेलप एंड सील्ड इट। हिज फादर ऑर्डर्स स्वामी टू गेट रेडी, और बोलता है कि चल स्कूल पे मैं तुझे छोड़ने आता हूँ, ये मैं तुझे ये लेटर देता हूँ, ये लेटर तुझे हेड मास्टर को दे देना। अब स्वामी पूछता है व्हाट हैव यू रिटन फादर? स्वामीनाथन आस्क्ड एप्रीहेंसिवली। एप्रीहेंसिवली का मतलब होता है एंग्जाइटी, विथ फुल एंग्जाइटी, मतलब टेंशन में आ गया। स्वामी सोचता है कि पिताजी ने क्या लिखा होगा उसके अंदर। स्वामी के फादर बोल रहे हैं नथिंग फॉर यू, गिव इट टू योर हेड मास्टर एंड गो टू योर क्लास। कुछ नहीं है, तू ये लेटर तेरे हेड मास्टर को देना और तू क्लास में बैठ जाना। अब स्वामी को और चिंता होने लगी, सोचता है कि फादर ने क्या लिखा होगा। हैव यू रिटन एनीथिंग अबाउट आवर टीचर सैमुअल? क्या आपने सैमुअल के बारे में कुछ लिखा है पापा? हिज फादर आंसर्स plenty of things about him. When your headmaster reads it, he will probably dismiss Samuel from the school and hand him over to the police. बोला कि तेरे टीचर पढ़ेंगे हेडमास्टर को, तेरे टीचर को स्कूल से निकाल देंगे और पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी, अरेस्ट कर देगी। What has he done father? स्वामी को चिंता होने लगी क्योंकि छोटा बच्चा था, 3री-4थी कक्षा में पढ़ता था, उसको लगा कि जेल पुलिस ले जाएगी। अगेन इट इज चाइल्ड साइकोलॉजी, छोटे बच्चों को पुलिस का डर होता है। बोले हमारे टीचर को पुलिस ले जाएगी, ऐसा तो उसने क्या किया है? अब फादर बोल रहा है वेल दैट इज अ फुल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग ही हैज डन इन द लेटर। तूने जो कुछ भी बताया, उसने जो कुछ भी किया, सारी चीजें मैंने इसके अंदर लिख दी है। गिव इट टू योर हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास। यू मस्ट ब्रिंग एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हिम इन द इवनिंग। सुबह जाते वक्त ये टीचर को दे देना, मतलब कि हेडमास्टर को दे देना, और जब वापस आओ तो उनसे ये एक्नॉलेजमेंट लेटर वापस लेके आना कि उन्होंने क्या एक्शन लिया। अब स्वामी को लगा कि
लगा कि स्कूल तो जाना ही जाना है, और ऊपर से ये चिट्ठी हेडमास्टर को मिलना। Swami went to school feeling that he was the worst perjurer. Perjurer का मतलब होता है झूठी जुबान देने वाला, गवाही देने वाला, ऑन अर्थ। अब सोचता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे सैमुअल टीचर के बारे में जो कुछ भी बताया वो कितना सही था कितना गलत था वो तो मुझे भी नहीं मालूम है। वॉट एवर कम्स इन माई माइंड आई हैव टोल्ड माई फादर, मुझे जो कुछ भी लगा मैंने बोल दिया, पता नहीं उसमें से कितना सच कितना झूठ था। His conscience bothered him, मतलब सोचने लगा, परेशान होने लगा। He wasn't at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. He could not decide how much of what he had said was imagined and how much of it was real. सोचता है कि पता नहीं मैंने जो कुछ भी बताया उसमें से कितना कितना सही था कितना गलत था। He stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. He was not such a bad man after all. सोचता है कि यार मैंने टीचर के बारे में क्या बता दिया, हालांकि टीचर सैमुअल इतना बुरा भी इंसान नहीं, इतने बुरी भी टीचर नहीं, वो अच्छे इंसान है। Personally he was much more genial than the rest. Often genial का मतलब होता है kind. अगर देखा जाए कंपेयर किया जाए तो दूसरे टीचर से वो ज़्यादा थोड़ा काइंड भी है, अच्छा है। ऑफन ही क्रैक्ड अ जॉक और टू सेंटरिंग अराउंड स्वामीज inactions, and Swami took it as a mark of Samuel's personal regard for him. अब सैमुअल के बारे में वो सोचते हैं, मतलब कि नो नाउ स्वामी थिंक्स रादर I can say contemplates over the character of Samuel, whether he is really a violent creature or not, whether he used to beat the student or not. सोचता है, now he is in dilemma what to do and what not to do. अब ये लेटर क्या किया जाए, पापा को कुछ बोल नहीं सकता है, टीचर को भी कुछ नहीं बोल सकता है, हेडमास्टर को ये लेटर देना है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाएगी। यू नो देयर वर सो मेनी थिंग्स इन हिज माइंड एंड ही गॉट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजन में आ गया। एक मतलब कि वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में आ गया कि थोड़ी देर में वो टीचर के बारे में सोचता है, थोड़ी देर में वो अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, अब उसको जाना ही जाना था स्कूल में। तो बोले टीचर अच्छा भी है, कभी कभी तो जॉक्स भी बोलते हैं, तो बच्चे को ऐसे टीचर्स अच्छे लगते हैं। बट देयर वॉज नो डाउट दैट ही ट्रीटेड पीपल बैडली। अब उसकी जो माइनस पॉइंट है, ड्रॉबैक्स है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बात तो सही है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को मारता पीटता तो जरूर है। ही कैन स्किन पीपल्स हैंड्स, मतलब वो टीचर जो स्टिक से बहुत मारते हैं बच्चों को। स्वामी कास्ट हिज माइंड अबाउट फॉर एन इंस्टेंस ऑफ दिस, there was none within his knowledge. Years and years ago he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him smear the blood on his face. No one had actually seen it, but years after year the story persisted among the boys. Swami's head was dizzy with confusion in regard to Samuel's character, whether he was good or bad, whether he deserved the allegations, मतलब कि चार्जेस, उसके सामने जो चार्जेस लगे हुए हैं, एलिगेशंस जो है, in the letter or not. Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter, but father was an obstinate man. See, again in this paragraph, Swami R.K. Narayan has delineated स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी मीन्स व्हाट? से मोस्ट प्रोबेबली आपने कई बार स्कूल के अंदर देखा होगा, कोई टीचर के बारे में, कोई स्टूडेंट के बारे में ऐसी अफवाहें चलती रहती है। टीचर के बारे में एक ऐसी अफवाह कॉमन होती है कि ये टीचर बहुत किसी को मारते थे, एक लड़के को, एक स्टूडेंट को तो इतना मारा कि उसको लहूलुहान कर दिया, वो मतलब कि बेहोश हो गया, तब तक उसको मारा। कई बार स्टूडेंट्स के बारे में भी ऐसी अफवाहें चलती है, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है वो किसी भी टीचर से नहीं डरता है, गुंडे जैसा होता है, इवन प्रिंसिपल भी उससे डरता है। ये सारी अफवाहें चलती रहती है, वो ईयर्स टू ईयर वो कंटिन्यू होती रहती है। लेकिन सही में वो अफवाहें सही है कि गलत है वो किसी को पता नहीं होता है, लेकिन कानों कान लोग सुनते आ रहे हैं।
और वही बात आगे आगे होती है। तो स्वामी भी सोचता है कि हाँ मैंने भी ऐसा सुना तो है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि गलत, कि एक स्टूडेंट को उन्होंने इतना मारा था कि उसको बहुत खून निकल गया था। लेकिन बोले कि अब हो कुछ नहीं सकता है, ना ही मैं फादर को वापस दे सकता हूँ चिट्ठी, क्योंकि फादर जो है वो ऑब्स्टिनेट है, बहुत ही ज़िद्दी है। चलो ठीक है, जाते हैं स्कूल, देखते हैं क्या होता है। ऐसा सोच के ही मूव्स अहेड, आगे निकलता है। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग का मतलब उसकी स्कूल। एज ही अप्रोच द येलो बिल्डिंग ही रियलाइज्ड दैट ही वॉज परज्यूरिंग हिमसेल्फ एंड वॉज ruining his teacher. Probably the headmaster would dismiss the Samuel and then the police would chain him and put him in jail. सोचता है कि स्कूल आ गई, अब वो उसकी धड़कन और तेज होने लगती है, सांसें और फूल जाती है। सोचता है कि सैमुअल का क्या होगा, अब टीचर के बारे में सोचता है कि अब क्या होगा। हेडमास्टर पुलिस को बुला लेंगे, स्कूल में से उसको डिसमिस कर देंगे, और ये सारे मतलब ये सारी जो चीज़ें होगी उसके लिए मैं अकेला ही जिम्मेवार रहूँगा। फॉर ऑल दिस डिसग्रेस, ह्यूमिलिएशन एंड सफरिंग वुड बी रिस्पॉन्सिबल। इसका जवाबदार इंसान कौन? मैं। स्वामी शडर्ड का मतलब होता है शेक, मतलब ये सोच के वो घबराने लगता है कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए हुई रही है। आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सच काइंड ऑफ ट्रबल्स that I have created for Samuel. The more he thought of Samuel, the more he grieved for him. The dark face, his small red strict eyes, his thin line of mustache, his unshaven cheek and chin, his yellow coat, everything filled Swami with sorrow. मतलब जैसे डबल कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पे प्रयोग किया है। द मोर ही थॉट ऑफ सैमुअल, मतलब कि जितना और सैमुअल टीचर के बारे में सोचता है उतना और वो ग्रीव्ड यानी दुखी हो रहा है। जितना सैमुअल के बारे में सोचता है, सैमुअल की पूरी जो पिक्चर होती है वो पिक्चर उसके आंखों के सामने नजर आती है। द डार्क फेस, स्मॉल रेड स्ट्रिक्ट आइज, हिज थीन लाइन ऑफ मुस्टेज, हिज अनशेवन चीक एंड चीन, सारी येलो कोट, ये सारी चीज़ें, मतलब कि पूरा I can say that the entire picture of Samuel teacher appears in front of Swami's eyes. As he felt the bulge of the letter in his pocket, he felt like an executioner. मतलब कि जैसे ही जेब में उसने हाथ डाला तो लेटर का जो बंडल था, मतलब बल्ज का मतलब कि सूजन होती है यहाँ पे, लेकिन जेब के अंदर जो लेटर था वो देखता है और अपने आप को वो एग्जीक्यूशनर समझता है, अपने आप को वो जल्लाद समझता है। फॉर अ मोमेंट ही वॉज एंग्री विद हिज फादर, एक दो मोमेंट के लिए तो फादर पे भी वो एंग्री हो गया। एंड वंडर्ड वाई ही शुड नॉट फ्लिंग इन टू द गटर द लेटर ऑफ अ मैन सो अनरिजनेबल एंड स्टबर्न। बोलता है कि ये लेटर में गटर के अंदर डाल दूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं कर सकता था। एज ही एंटर्ड द स्कूल, अब यहाँ से देखो पूरी जो एपिसोड है फुल ऑफ ह्यूमर है। एज ही एंटर्ड द स्कूल, as he entered the school gate, an idea occurred to him, a sort of solution. He wouldn't deliver the letter to the headmaster immediately, but at the end of the day, to that extent, he would disobey his father and exercise his independence. There was nothing wrong in it, and father would not know it anyway. If the letter was given at the end of the day, there was a chance that Samuel might do something to justify the letter. See, यहाँ से this is the second part of the story. In the first part of the story, the entire situation is narrated. R.K. Narayan has very skillfully narrated the situation of Swami. Why Swami doesn't want to go to school, what kind of excuses that Swami has made to his mother and father, what his father has done for his teacher, and now what happens in the school. स्वामी सोचता है कि अब खैर स्कूल तो आ ही गई, क्या किया जाए। सोचता है कि एक अपने आप एक डिसीजन ले लेता है। ठीक है, पापा ने बोला था कि ये हेडमास्टर को लेटर देना है, लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल ख़त्म हो जाएगी बाद में दूंगा, और पापा को पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे देखा जाए तो पापा की बात भी हो जाएगी, मतलब कि पापा ने जो बोला वो भी मैं कर लूँगा, लेकिन आगे पीछे हो जाएगा। पापा ने पहले बोला था मैं स्कूल ख़त्म होने के बाद में दूंगा, और तब तक मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँ, और सोचता है कि तब तक मैं एक चांस ले लेता हूँ। आज मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सैमुअल टीचर मुझे पीटे, मारे, मेरे पे गुस्सा होए, और बाद में ये लेटर मैं उसको दे दूंगा, तो जो कुछ भी लेटर के अंदर मैटर लिखा हुआ है वो जज हो जाएगा। दिस वॉज
अ डेविल आइडिया इन द माइंड ऑफ अ स्मॉल डेविल। ये ये स्वामी के माइंड में ये एक ख्याल आता है। अब देखते हैं स्कूल में जाता है क्या होता है। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास। अभी मतलब ये पूरा जो एपिसोड है आपके आंखों के सामने दिखना चाहिए। स्वामी स्टूड एट द एंट्रेंस टू हिज क्लास, अपनी स्कूल के अंदर आ गया, स्कूल में से अपने क्लास के अंदर आ गया, क्लास के बाहर खड़ा हुआ है, एंड ही वॉज आस्किंग फॉर द परमिशन। सैमुअल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक, द लेक्चर द पीरियड वॉज गोइंग ऑन एंड द टीचर सैमुअल वॉज टीचिंग अरिथमेटिक, बीज गणित पढ़ा रहे थे। ही लुक्ड एट स्वामी फॉर अ मोमेंट, टीचर ने मतलब ऐसे देखा घूर के। स्वामी स्टूड होपिंग दैट सैमुअल वुड फॉल ऑन हिम एंड टीयर हिज स्किन ऑफ, सोचा कि आज टीचर मेरे पे गुस्सा हो, आज मुझे मार पीटने लगे, मजा आ जाए, वहां पे खड़ा रहे स्वामी। बट सैमुअल merely asked, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? उसको लगा कि टीचर जैसे भी लेट आते हैं बच्चे उसके डांटते हैं मारते हैं, आज मुझे टीचर मार पीट करे तो मज़ा आ जाए, ऐसा सोचता है। लेकिन वो जो सोचता है उससे आज कुछ अलग ही हो रहा है। सैमुअल टीचर जो थे वो आज बहुत ही काइंड हो गए और उसको टीचर ने बहुत प्यार से स्वामी को पूछा, आर यू जस्ट कमिंग टू द क्लास? बेटा क्या अभी अभी आ रहे हो? उसने बोला यस सर, हाँ अभी आ रहा हूँ। यू आर हाफ एन आवर लेट, टीचर बोले कि आप हाफ एन आवर लेट हो। स्वामी बोलता है यस आई नो इट। स्वामी होप्ड दैट ही वुड बी अटैक्ड नाउ, उसको लगा कि हाँ ऐसा मैं जवाब दे दूंगा टीचर को तो शायद वो गुस्सा हो जाएंगे और मुझे मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ही ऑलमोस्ट प्रेड, वो भगवान को मनी मन प्रार्थना करता है, गॉड ऑफ तिरुपति प्लीज मेक सैमुअल बेट मी। सी अगेन typical South Indianness, you can see the god of Tirupati, it indicates Tirupati, we know very well that goddesses of South India। तो यहाँ पे आर के नारायण उनके भगवान को भी याद कर लेते हैं स्वामी के कैरेक्टर थ्रू, सॉरी, और भगवान को प्रार्थना करता है कि आज सैमुअल अगर मुझे मारे भगवान तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। लेकिन टीचर उनको पूछता है वाई आर यू लेट? स्वामी वांटेड टू रिप्लाई, हालांकि मनी मन स्वामी सोच रहा है कि मैं जवाब तो ये दे दूं, जस्ट टू सी व्हाट यू कैन डू, देखते हैं आप क्या कर लेते हो आज। लेकिन वो ऐसा बोल नहीं पाता है, उसकी भी एक लिमिटेशन है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर है। बट ए मैरली सेड, लेकिन वो मुश्किल से इतना ही बोल पाया, आई हैव अ हेडेक सर, सर मुझे बहुत सर दर्द है। टीचर बोल रहा है देन वाई डिड यू कम टू स्कूल एट ऑल? अरे बेटा तुझे सर दर्द है तो स्कूल पे क्यों आया? आज तुझे छुट्टी रखनी चाहिए थी। ये आंसर भी कैसा था? अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम सैमुअल। सैमुअल हालांकि आज तक किसी को ऐसा बोला ही नहीं, अगर बच्चे छुट्टी रखते लेट आते तो उसको डांटते थे मारते थे, लेकिन आज वो सामने से स्वामी को बोल रहा था कि अगर तुझे इतना हेडेक था तो तुझे नहीं आना चाहिए था स्कूल। स्वामी आंसर देता है माई फादर सेड दैट आई शुडंट मिस द क्लास सर, सेड स्वामी। स्वामी बोले हाँ आना तो मैं भी नहीं चाह रहा था, लेकिन पिताजी ने बताया कि आप स्कूल मिस नहीं कर सकते हो, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं स्कूल में आया हूं सर। दिस सीम्स टू इम्प्रेस सैमुअल। स्वामी की ये बात सुन के सैमुअल टीचर जो थे वो इम्प्रेस हो गए और कहने लगे योर फादर इज क्वाइट राइट, अ वेरी सेंसिबल मैन, वी वांट मोर पेरेंट्स लाइक हिम। मतलब कि इतने इम्प्रेस हो गए और स्वामी के फादर की तारीफ करने लगे, बोले हाँ तुम्हारे पापा जैसे तो और भी पेरेंट्स होने चाहिए, तो एजुकेशन और भी आगे हिंदुस्तान में बढ़ेगा। स्वामी मनी मन सोचता है ओ यू पुअर वॉर्म, स्वामी थॉट, स्वामी મનમાં વિચારે અરે સાહેબ તમને ખબર નહીં બાપાએ શું પ્લાન કરી રાખ્યા છે અને તમે એના વખાણ કરો છો। सोचता है कि ओ यू पुअर वॉर्म, टीचर आपको मालूम नहीं है मेरे पिताजी ने आपके लिए क्या कुछ कर रखा है। यू वॉन्ट नो वॉट माई फादर हैज डन टू यू। ये मनी मन सोच रहा है। ही वॉज मोर पजल्ड दैन एवर अबाउट सैमुअल्स कैरेक्टर। अब सैमुअल के कैरेक्टर उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा, क्योंकि अब तक तो वो सोच रहा था कि सैमुअल जो टीचर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही वायोलेंट है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके पर्सनल एक्सपीरियंस उसका कुछ अलग ही था, क्योंकि वो जो कुछ भी वो बता रहा था दैट ही हैड हर्ड फ्रॉम समवेयर, मतलब लोग ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ और ही हो रहा है आज। ऑल राइट, गो टू योर सीट, हैव यू स्टिल अ हेडेक? बोला ठीक है बेटा जा तेरे सीट पे बैठ जा। अभी क्या अभी तेरा सिर दर्द कर रहा है? स्वामी आंसर दे रहा है स्लाइटली सर, हाँ थोड़ा बहुत। स्वामी वेंट टू हिज सीट विथ अ ब्लीडिंग हार्ट, बल्कि और उसकी धड़कनें और तेज हो गई। ही हैड नेवर मेट अ मैन सो गुड एज सैमुअल। अब
आज सैमुअल तो उसको भगवान जैसा लग रहा है कि यार टीचर इतने अच्छे थे और इतने अच्छे हैं, मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था। और मैंने पापा को ना जाने क्या कुछ बता दिया पापा को, और पापा ने ना जाने क्या क्या कुछ चिट्ठी में लिख दिया है। अगर मैं ये चिट्ठी टीचर को दे दूंगा, हेड मास्टर को दे दूंगा, स्कूल से उनको डिसमिस कर देंगे, पुलिस को बुलाएंगे और उनको जेल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें वो सोचता रहता है। द टीचर वॉज इंस्पेक्टिंग द होम लेसन्स। अगेन स्कूल साइकोलॉजी, स्कूल के अंदर यही होता है, पहले कुछ घंटे पढ़ाते हैं और बाद में 5-10-15 मिनट के अंदर जो होमवर्क दिया होता है वो चेक करते हैं, टीचर होमवर्क चेक करते हैं। और ये जो होता है वो बहुत ही क्रुशियल टाइम होता है। जब टीचर होमवर्क चेक करते हैं वो बहुत ही क्रुशियल टाइम इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहीं पे पीटते हैं, यहीं पे मार खाते हैं। The teacher was inspecting the home lessons, which usually produce in bracket at least according to Swami's impression scenes of great violence. एटलीस्ट स्वामी तो ये सोचता है कि टीचर जो होमवर्क नहीं लाए होंगे उनको आज मारेंगे। ठीक है, अब स्वामी कुछ और ट्रिक बनाता है। नोटबुक्स वुड बी फ्लंग एट फेसेस, बॉयज वुड बी अब्यूज्ड, कैन एंड मेड टू स्टैंड अप ऑन बेंचेस। ज़्यादातर यही होता है कि टीचर अगर कोई स्टूडेंट होमवर्क नहीं लाया होता है तो उसकी नोटबुक उसके चेहरे पे फेंकता है, उनको मारते हैं, गालियाँ देते हैं, ऐसा कुछ मतलब होता है। लेकिन बट today Samuel appeared to have developed more tolerance and gentleness. He pushed away the bad books, just touched the people with the can, never made anyone stand up for more than a few minutes. Swami's turn came. He almost thanked God for the chance. मतलब आज टीचर ने ना ही किसी को डांटा, ना ही कुछ बोला, ना ही किसी को कुछ पनिशमेंट दी। अगर किसी को खड़ा भी रखा तो 1-2 मिनट के बाद में उनको बिठा दिया। मतलब आज जो सैमुअल है, टीचर जो है, वो बहुत ही जेंटल लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे आज स्वामी फील कर रहा है उनके लिए। अब टीचर जो थे होमवर्क चेक करते स्वामी के पास आ गए, स्वामी के बेंचेस पे आ गए और स्वामी की बेंच पे आकर के उसका होमवर्क चेक करने लगते हैं। और स्वामी का जब टर्न आया, मन ही मन वो भगवान को थैंक बोला कि आज मैं चलो टीचर को होमवर्क नहीं बताता हूँ, देखते हैं टीचर क्या करते हैं। स्वामीनाथन, वेयर इज़ योर होमवर्क? टीचर ने पूछा, स्वामी बेटा तेरा होमवर्क? अब देखो स्वामी कैसे बोल रहा है, विनम्रता के साथ। ही सेड ब्लैंडली, विनम्रता के साथ बोला है, आई हैव नॉट डन एनी होमवर्क सर सॉरी, मैंने कुछ काम नहीं किया है आज। देयर वॉज अ पोज, मतलब ना ही कुछ टीचर बोल रहे हैं ना ही स्वामी बोल रहा है। फिर टीचर बोल रहे हैं, वाई हेडेक? आस्क्ड द सैमुअल। सैमुअल पूछते हैं क्यों, हेडेक था इसलिए? स्वामी ने बोला, हाँ सर, यस सर। टीचर ने बोला, ऑल राइट सिट डाउन, ठीक है चलो कोई बात नहीं। स्वामी सेट डाउन। स्वामी को लगा टीचर डांटेंगे मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। टीचर ने बोला, ठीक है बेटा बैठ जाओ। वंडरिंग व्हाट हैड कम ओवर सैमुअल, अरे आज सैमुअल को क्या हो गया, टीचर को क्या हो गया है। द पीरियड केम टू एन एंड, मतलब कि पूरा लेक्चर खत्म हो गया, स्वामी कुछ कर नहीं पाया। स्वामी फेल्ट डिसोलेट। The last period for the last day was again taken by Samuel. The last lecture था वो भी क्लास टीचर ही लेने वाले थे। He came this time to teach them Indian history. फर्स्ट जो लेक्चर था वो अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक पढ़ा रहे थे टीचर, मतलब कि मैथ्स पढ़ा रहे थे। अब जो था वो इंडियन हिस्ट्री का सबसे बोरिंग अगर सब्जेक्ट कोई हो, और स्पेशली इन स्कूल डेज, तो ये हिस्ट्री का, और वही टीचर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। लास्ट लेक्चर था। स्वामी ने बोला कि अगर कुछ होगा तो इस लेक्चर में होगा, वरना ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा जैसे फर्स्ट ख़त्म हो गया और कुछ नहीं हो पाएगा। द पीरियड बिगन एट 3:45 एंड एंडेड एट 4:30। स्वामीनाथन हैड सैट थ्रू द प्रीवियस पीरियड्स थिंकिंग एक्यूटली, मतलब कि बाद में सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेक्चर के अंदर, पीरियड के अंदर स्वामी सोचने लगा कि क्या किया जाए, मतलब कुछ पढ़ाई नहीं की और सोचता ही रहता था, प्लान ही बनाता था कि क्या होगा लास्ट लेक्चर के अंदर। ही कुड नॉट डिवाइस एनी मीन्स ऑफ प्रोवोकिंग सैमुअल। सोचा कि अब सैमुअल टीचर को कैसे प्रोवोक किया जाए, उसको कैसे मतलब कि और टीज किया जाए ताकि वो हमें मारने पर मजबूर हो जाए। when the clock struck 4,
स्वामी फेल्ट डिस्परेट, मतलब कि 4 बजा, साढ़े 4 बजे तो लेक्चर ख़त्म होने वाला था। स्वामी और टेंशन में आ गया कि क्या करूं, हाफ एन आवर मोर, अभी आधा घंटा बाकी है। सैमुअल वॉज रीडिंग द रेड टेक्स्ट, the portion describing Vasco da Gama's arrival in India. Again the common incident that we have learnt in our हिस्ट्री के अंदर वास्को दी गामा अराइवल हमने ये चैप्टर पढ़ा था और टीचर वो बुक में से ये चैप्टर पढ़ रहे थे। द बॉयज लिसन इन हाफ लैंग्यूर, लैंग्यूर का मतलब होता है बहुत ही आलस के साथ सुन रहे थे। रिलैक्स मतलब कि कुछ बच्चे सुन रहे थे, कुछ बच्चे सो रहे थे, ऐसी एक परिस्थिति थी, क्योंकि हिस्ट्री के लेक्चर में ज़्यादातर वही होता है। स्वामी सडनली आस्क्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब टीचर पढ़ा रहे थे, सोचा कि अब क्या करूँ। टीचर को टीस करने के लिए स्वामी ने जितनी उसकी आवाज़ थी उतनी आवाज़ निकाल करके पूछा, वाई डिड नॉट कोलंबस कम टू इंडिया सर। सर ने बताया कि वास्को दी गामा आया था, तो उसने ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया एट हिज टॉप ऑफ वॉइस, अरे कोलंबस क्यों नहीं आया सर। टीचर ने आंसर दिया, ही लॉस्ट हिज वे, एक्चुअली कोलंबस आना चाह रहा था लेकिन उसको रास्ता नहीं मिला। अब स्वामी और चिल्लाते हुए बोल रहा है, आई कांट बिलीव इट, इट इज अनबिलीवेबल सर, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं मानने की तैयार ही नहीं हूं। टीचर बोले वाई। स्वामी बोल रहा है, सच अ ग्रेट मैन वुड ही हैव नॉट नोन द वे, इतना महान इंसान क्या उसको रास्ता नहीं मिलता हो, ऐसा हो सकता है कभी। टीचर बोला, डोंट शाउट, आई कैन हियर यू क्वाइट वेल, अरे चिल्ला चिल्ला के मत बोल, मैं तुझे अच्छी तरह से सुन सकता हूं। चिल्लाते हुए बोल रहा है, आई एम नॉट शाउटिंग सर, दिस इज माई ऑर्डिनरी वॉइस विच गॉड हैज गिवन मी, हाउ कैन आई हेल्प इट। अरे सर ये मेरा ऑर्डिनरी आवाज़ है, मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा आपको लग रहा है। मतलब कि टीचर के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रहा है। टीचर गुस्सा होते हैं, शट अप एंड सिट डाउन, बोले बैठ जा। स्वामीनाथन सेट डाउन फीलिंग स्लाइटली हैप्पी एट हिज सक्सेस, बोले हाँ चलो। टीचर थोड़ा तो गुस्सा हुआ, मजा आ गई। द टीचर थ्रू अ पजल, टीचर ने और क्वेश्चंस पूछने चालू किए। सस्पिशियस ग्लांस एट हिम एंड रेज्यूम्ड हिज लेसन्स, टीचर थोड़े पजल, मतलब कि उनके दिमाग में लगा कि आज स्वामी क्या क्यों ऐसा बिहेवियर है। सस्पिशियस ग्लांस मतलब कि उसको देखते हैं फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हिज नेक्स्ट चांस अकर्ड व्हेन शंकर ऑफ द फर्स्ट बेंच गॉट अप एंड आस्क्ड, फिर उसके क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम शंकर था वो खड़ा हुआ और क्वेश्चन पूछा सर को, सर वाज वास्को दी गामा द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कम टू इंडिया, क्या सर वास्को दी गामा क्या पहली बार आया था और वही पहला इंसान था जो इंडिया आया था फॉरेन से। टीचर इस क्वेश्चन का आंसर देते शंकर को उससे पहले ही स्वामी खड़ा हो जाता है। बिफोर द टीचर कुड आंसर, स्वामी शाउटेड फ्रॉम द बैक बेंच, दैट इज व्हाट दे से, अरे ये तो लोग बोल रहे हैं। द टीचर एंड ऑल द बॉयज लुक्ड एट स्वामी, मतलब पूरी क्लास और टीचर सारा मतलब क्लास स्वामी को देखने लगा। द टीचर वॉज पजल्ड बाय स्वामीज ऑब्स्ट्रूसिव बिहेवियर टुडे। ऑब्स्ट्रूसिव का मतलब होता है સ્ટ્રેન્જ બિહેવિયર, વિચિત્ર પ્રકારનું આનું આ વર્તન જોઈને ટીચર પણ ટેન્શનમાં આવી ગયા કે કેમ આજે આવું કરી રહ્યો છે। સ્વામીનાથન યુ આર શાઉટિંગ અગેન, ટીચર बोल रहा है स्वामी ने तुझे ना बोला था चिल्ला चिल्ला के मत बोल, क्यों चिल्ला रहा है। स्वामी अगेन चिल्लाते हुए बोल रहा है, आई एम नॉट शाउटिंग सर, हाउ कैन आई हेल्प माई वॉइस गिवन बाय गॉड। वही बात दोहराता है, सर ये मेरा ऑर्डिनरी आवाज़ है, इससे कम आवाज़ नहीं होगी। द स्कूल क्लॉक स्ट्रक अ क्वार्टर आर, अब 15 मिनट बाकी थी। क्वार्टर मोर मतलब ये घटना को मतलब 4:15 हो गया, 4:30 को लेक्चर ख़त्म होने वाला, उसके पास और 15 मिनट थी टीचर को और ज़्यादा टीज करने के लिए और गुस्सा लाने के लिए। बोले कि अभी मेरे पास स्टिल आई हैव 15 मिनट्स। स्वामी फेल्ट ही मस्ट डू समथिंग ड्रास्टिक इन 15 मिनट्स, सोचा कि अब मेरे पास आई हैव ओनली 15 मिनट्स, आई हैव टू डू समथिंग विद इन दिस 15 मिनट्स to make Samuel more violent, to get Samuel more, angry with me. Samuel had no doubt scowled at him and snubbed him, but it was hardly acute. हालांकि टीचर ने उसको डांटा लेकिन अभी इतना एडक्यूट नहीं था, इतना इनफ नहीं था, काफ़ी नहीं था। टीचर के बारे में जो कुछ भी उसने फादर ने चिट्ठी में लिखा था वो सब जज करने के लिए, प्रूव करने के लिए इतना काफ़ी नहीं था। Swami felt that
With a little more effort, Samuel could be made to deserve dismissal and imprisonment. और भी थोड़ा उसको गुस्सा किया जाए तो टीचर को डिसमिस भी कर देंगे, उसको जेल भी हो जाएगी. इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल होना. मतलब ये कुछ मैं करता हूँ. द टीचर केम टू द एंड ऑफ अ सेक्शन इन द टेक्स्ट बुक एंड स्टॉप्ड. मतलब कि लास्ट सेक्शन पढ़ लिया टेक्स्ट बुक में से, टेक्स्ट बुक बंद कर दी. He proposed to spend the remaining few minutes putting the questions to the boys. See again, आपकी स्कूल डेज को याद करो. Now again it is a school psychology. Most of the time in school 5-10 मिनट बाकी होते, टीचर लास्ट 5-10 मिनट के अंदर हमें क्वेश्चन पूछते हैं जो कुछ भी पढ़ाते हैं उसमें से. तो ये सैमुअल टीचर भी क्वेश्चन पूछते हैं. He ordered the whole class to put away their books. Common instruction हर टीचर हर लेक्चर के अंदर देते हैं, आपकी किताबें बंद कर दो, बैग के अंदर रख दो. वैसे भी लास्ट लेक्चर था, मतलब आपकी जो बैग है वो मतलब पैक कर दो, आपकी स्कूल बैग रेडी कर दो और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो. एंड आस्क समवन इन द सेकंड रो, किसी बच्चे को पूछा सेकंड रो में, व्हाट इज द डेट ऑफ वास्को दी गामा's अराइवल इन इंडिया. बोलो वास्को दी गामा कब आया था. अब एक्चुअली क्वेश्चन किसी और को पूछते हैं, जवाब स्वामी देता है. स्वामीनाथन शूट अप एंड स्क्रीच्ड 1648 December 20. स्वामीनाथन खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा 1648 December 20. टीचर और गुस्सा हो गए. यू नीडंट शाउट सेड द टीचर. टीचर बोला अरे चिल्ला क्यों रहा है, तुझे कितनी बार बताया. ही आस्क्ड हैज योर हेडेक मेड यू मैड. टीचर बोल रहा है क्या पागलपन के दौरे पड़ने लगे, ये हेडेक हुआ था उसमें से पागल हो गया क्या तू. स्वामी आंसर दे रहा है आई हैव नो हेडेक नाउ सर, रिप्लाइड द थंडरर ब्राइटली. मतलब आवाज़ को और तेज करके खोल करके बोला सर अब कोई सिरदर्द दर्द नहीं है मुझे. टीचर बोला सिट डाउन यू इडियट. स्वामी थ्रिल्ड एट बीइंग कॉल्ड एन इडियट. पहली बार टीचर ने उनको इडियट बोला, स्वामी खुश होने लगा. बोला चलो टीचर ने एक गाली दी, अच्छा किया. इफ़ यू गेट अप अगेन आई विल कैन यू. टीचर ने उनको वार्न किया, अगर तू खड़ा हुआ तो मैं तुझे स्टिक से मारूंगा. सेड द टीचर. स्वामी सेट डाउन फीलिंग हैप्पी एट द प्रॉमिस. स्वामी बोला चलो ठीक है, टीचर ने प्रॉमिस दी कि अब मैं कुछ मिसचिवियस एक्ट करूंगा, टीचर मारेंगे, मजा आएगा. द टीचर देन आस्क्ड. टीचर ने और क्वेश्चन पूछना चालू किया. आई एम गोइंग टू पुट अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन मुगल पीरियड. अमॉन्ग द मुगल एम्पेयर वूम वुड यू कॉल द ग्रेटेस्ट, वूम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वूम द मोस्ट रिलीजियस एम्पेयर. बोले कि मुगल साम्राज्य में से सम्राट अच्छा में मतलब कि बहुत अच्छा सम्राट राजा कौन था, कौन ग्रेटेस्ट था, स्ट्रॉन्गेस्ट था और रिलीजियस था. स्वामी गॉट अप. स्वामी खड़ा हो गया. एज सुन एज ही वॉज सीन, जैसे ही खड़ा हुआ द टीचर सेड एम्पैथेटिकली सिट डाउन. टीचर बोला बैठ जा. स्वामी और खड़ा हो गया. आई वॉन्ट टू आंसर सर. स्वामी बोला नहीं नहीं मैं आंसर देना चाह रहा हूँ. टीचर बोल रहे हैं सिट डाउन. टीचर ने बोला कि बैठ जा. फिर खड़ा हो गया, बोले नो सर आई वॉन्ट टू आंसर. नहीं आंसर तो मैं ही दूंगा. टीचर बोल रहे हैं व्हाट डिड आई से आई वुड डू इफ यू गॉट अप अगेन. याद है मैंने तुझे क्या बोला था, अगर तू फिर से खड़ा हुआ तो मैं क्या करूंगा. स्वामी बोल रहा है यू सेड यू वुड कैन मी एंड पील द स्किन ऑफ माई नकल्स एंड मेक मी प्रेस इट ऑन माई फोरहेड. हाँ सर मुझे याद आया कि आपने बताया था कि अगर मैं खड़ा हुआ चिल्लाया तो आप मुझे मारेंगे और मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे. टीचर ने बोला हाँ यू आर राइट, ऑल राइट कम हियर, चल यहाँ जा. स्वामीनाथन अब टीचर पनिशमेंट देने जा रहे हैं और स्वामी बहुत अंदर से हैप्पी है. अब हैप्पी क्यों है, बिकॉज कि उसके पास जो पापा ने जो चिट्ठी भेजी थी, पापा ने जो लेटर भेजा था कंप्लेन लेटर, वो जज करने के लिए स्वामी टीचर से गाली गलौज सुनना चाह रहा था, टीचर से पिटना चाह रहा था. इसलिए स्वामी लेफ्ट हिज सीट जॉयफुली, सी हियर द वर्ड जॉयफुली, एंड होप्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. द टीचर टुक आउट हिज कैन फ्रॉम द ड्रॉअर एंड शाउटेड एंग्रीली ओपन योर हैंड यू लिटिल डेविल. टीचर ने बोला गया तेरा हाथ खोल. डेविल बोला और भी खुश हो गया. ही whacked 3 wholesome cuts on each palm. Swami received them without blinching. आफ्टर ब्लिंचिंग का मतलब होता है यहाँ पे फियर. अब ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, टीचर जब मारते हैं तो अब थोड़ा हमें डर लगता है, सोचते हैं भगवान को प्रे करते हैं कि अगर टीचर आज ना मारे तो ठीक. लेकिन स्वामी को डर नहीं था आज, क्योंकि स्वामी दिल से चाह रहा था कि आज वो पीटे, आज सैमुअल टीचर उनको मारे. आफ्टर half a dozen the teacher asked, will this do or do you want some more.
जनरली इट हैपन्स, ज़्यादातर गुजराती स्कूलों के अंदर टीचर ये डायलॉग कॉमनली बोलते हैं, हजी मार खाओ तारे। द सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय द सैमुअल बिफोर 1947। ठीक है, टीचर वही पूछता है कि क्या और भी मार खानी है। स्वामी मैरली हेल्ड आउट हिज हैंड अगेन, बोला हाँ चलो मार लो सर। रिसीव्ड 2 more एंड द बेल रैंग, और टीचर ने 2 खींच के लगाई और 4:30 बज गए, लेक्चर ख़त्म, स्कूल ख़त्म। स्वामी को 2-3 बार गाली भी सुनने को मिली, टीचर भी उस पर गुस्सा हुए और मारा पीटा भी। मतलब कि स्वामी ने जो कुछ भी अपने फादर के सामने जो कुछ भी बोला था वो सारा उसने प्रूव कर दिया। नाउ इट इज़ टाइम टू हैंड ओवर द लेटर टू द हेड मास्टर। सो स्वामी वॉज वेरी हैप्पी इन हार्ट। स्वामी वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। स्वामी जम्प्ड डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म विद अ लाइट हार्ट दो हिज हैंड्स वर स्मार्टिंग। हालांकि उसके हाथ के अंदर अभी भी जलन हो रही थी टीचर ने जो मारा था, लेकिन फिर भी अंदरूनी आनंद ये था कि ठीक है चलो, मैंने जो कुछ भी पापा को बोला था वो सारी चीज़ें मैंने प्रूव कर दी। ही पिक्ड अप हिज बुक्स, टुक आउट द लेटर लाइंग इन हिज पॉकेट एंड रैन टू द हेडमास्टर रूम। चिट्ठी निकाली, अपने जो बुक्स वगैरह थी वो बैग के अंदर, स्कूल बैग के अंदर पैक कर दिया। फिर टीचर हेडमास्टर के रूम में गया। ही फाउंड द डोर लॉक्ड। जैसे ही प्रिंसिपल की कैबिन पे गया तो देखा कि वहाँ पे ताला लगा हुआ था। ही आस्क्ड द प्यून, पास में जो प्यून बैठे थे उनसे पूछा, वेयर इज द हेडमास्टर, अरे हमारे प्रिंसिपल कहाँ गए। पट्टा वाला पूछता है, प्यून पूछता है, वाई डू यू वॉन्ट हिम, क्यों तुझे क्या काम है। बोला माई फादर हैज सेंट अ लेटर फॉर हिम, अरे पापा ने एक लेटर दिया, उनको देना था। ही हैज़ टेकन द आफ्टरनून ऑफ एंड वॉन्ट कम बैक फॉर अ वीक। बोले आज आपके प्रिंसिपल दोपहर में ही चले गए और 1 वीक तक अभी तक आएंगे नहीं। यू कैन गिव द लेटर टू द असिस्टेंट हेड मास्टर, ही विल बी हियर नाउ। अगर फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो तो तू असिस्टेंट हेड मास्टर जो है उनको दे देना, वाइस प्रिंसिपल को। बोले ठीक है। पूछता है कि वो इजी वाइस टीचर कौन है, वाइस हेड मास्टर कौन है। बोले योर टीचर सैमुअल, ही विल बी हियर इन अ सेकंड। अरे आपके टीचर, क्लास टीचर सैमुअल सर, वही हेड मास्टर है, वाइस प्रिंसिपल वही है। स्वामीनाथन fled from the place. As soon as Swami went home with the letter, father remarked, I knew you wouldn't deliver it, you coward. स्वामी ने पूछा कि अब तो लेटर सैमुअल को दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि वो पूरा लेटर उसके अगेंस्ट में था। स्वामी वहाँ से फ्लेड यानी कि भाग गया, वहाँ से घर पे गया। घर पे फादर थे। फादर ने पूछा क्या हुआ, और फादर बोल रहा है आई न्यू यू वुडंट डिलीवर इट यू कावर्ड। बोले बुज़दिल, मुझे मालूम था कि तूने चिट्ठी नहीं दी होगी। स्वामी बेचारा बोल रहा है आई स्वेयर आर हेड मास्टर इज ऑन लीव। स्वामीनाथन बिगन, स्वामी बोल रहा है कि अरे पापा मैं कसम से बोल रहा हूँ, मैं देने गया था लेकिन हेड मास्टर थे ही नहीं, छुट्टी पे है। फादर रिप्लाइड डोंट लाई इन एडिशन टू बीइंग अ कावर्ड। बुज़दिल, ऐसे तू यहाँ वहाँ ऐसे बहाने बनाता है, सुबह से लेकर के आज रात तक शाम तक तू बहाना ही बहाना बताता है। स्वामी हेल्ड अप द एनवेलप एंड सेड, स्वामी ने वो एनवेलप निकाला और कहा आई विल गिव दिस टू द हेड मास्टर एज सुन एज ही इज बैक। लो पापा अभी आप रखो, टीचर आएंगे मैं जरूर उनको दे दूंगा। फादर स्नैच्ड इट फ्रॉम हिज हैंड, फादर ने वो चिट्ठी ले ली, टॉर इट अप, फाड़ दी एंड थ्रस्ट इट इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट अंडर हिज टेबल, और टेबल के नीचे जो डस्टबिन था और डस्टबिन के अंदर चिट्ठी फाड़ के डाल दी। ही मटर्ड, और उसके फादर ने, स्वामी के फादर बोल रहे हैं डोंट कम टू मी फॉर हेल्प इवन इफ सैमुअल थ्रॉटल्स यू। थ्रॉटल्स यानी कि अगर आपका गला भी दबा के अगर मार दे तो मेरे पास अब उनकी कंप्लेन लेके मत आना। यू डिजर्व योर सैमुअल, तू तेरे सैमुअल को ही डिजर्व कर रहा है। So here the entire story is over. So see, as I told you that in the entire story there is no any moral message or anything else, but this is the story which is written and only for the sake of art, for art's sake. So it provides you some humor. अगर आप खुद से पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे, you will really enjoy this story like anything. And if you really want to watch the entire the story, तो हालांकि इस पे पर्टिकुलरली कोई एपिसोड नहीं है मालगुडी डेज के अंदर, लेकिन ये जो एक्चुअली दिस इज द स्टोरी विच इज़ टेकन फ्रॉम हिज फर्स्ट नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स उसकी जो नॉवेल है उसमें से एक
एपिसोड निकाला हुआ है और आर के नारायण ने उसको अलग से डेवलप किया हुआ है. तो यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ इंसिडेंट इन द 1 to 7 एपिसोड्स ऑफ द मालगुडी डेज. मालगुडी डेज के 1 से 7 तक अगर आप एपिसोड्स देखोगे तो वो जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो नॉवेल है, वो नॉवेल के 7 एपिसोड, इसके अंदर ये भी एपिसोड आ जाएगा. यू विल रियली फाइंड यू विल रियली एंजॉय दिस ऑल 7 एपिसोड्स ऑफ मालगुडी डेज. अगर आपके पास टाइम है और आपको ऐसे सीरियल देखना अच्छा लगता है तो मालगुडी डेज के एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 तक देख लेना. तो ये स्वामी का कैरेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा एंड यू विल रियली एंजॉय द एंटायर story and all the episodes of Malgudi Days. So I hope that you might have enjoyed this story. Thank you very much. Have a nice day to all of you.